We'll continue with the next paragraph. In this paragraph, we will talk about the drums of Swaraj begin to sound. With a few selected bands of Maulas, Shivaji descended into the Kannad valley, swift-footed like the deer and lion-hearted in courage. They raced to the top and captured the strategic positions in the fort. Tanaji Malusare hoisted the Maratha flag at the main entrance. Yeshaji Kank, a trustworthy and loyal companion of Shivaji, posted his ground at an important point. The fort was captured almost without any resistance, and the sky was filled with shouts of Shivaji Maharaj ki Jai. The first battle drums and pipes of the Hindvi Swaraj had sounded, and their echo reverberated throughout the valley. Shivaji named this fort प्रचंडगढ़. तो नेक्स्ट पैरा में हम लोग पढ़ेंगे स्वराज के नगाड़े बजने लगे. मालवों के कुछ चुनिंदा समूह के साथ शिवाजी कन्नड़ घाटी में उतरे. हिरण की तरह तेज कदमों और साहस में शेर दिल वाले वे शीर्ष पर पहुंचे और किले में रणनीतिक स्थानों पर कब्जा कर लिया. तानाजी मलसूरे ने मुख्य द्वार पर मराठा ध्वज फहराया. शिवाजी के एक भरोसेमंद और वफादार साथी येसाजी कंक के महत्वपूर्ण बंधुओं पर अपने रक्षकों को तैनात किया. किलों पर लगभग बिना किसी प्रतिरोध के कब्जा कर लिया गया और आकाश शिवाजी महाराज की जय के नारों से भर गया. हिंदवी स्वराज के पहले युद्ध के नगाड़े और पाइप बज चुके थे और उनकी गूंज पूरी घाटी में गूंज रही थी. शिवाजी ने इस किले का नाम प्रचंडगढ़ रखा. मूविंग अहेड विल टॉक अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस भवानी. फोर्ट Torana then came under Shivaji's administration. He made a very careful survey of it and appointed officers such as a Maratha Kiledar, a Brahmin Sabnis and a Prabhu Karkhanis. The garrison included Maulas, Kolis, Ramoshis, Mahars and such brave men from many other castes and communities. In Swaraj, all castes and communities were to be treated alike and no distinctions made on the basis of caste. Repairs to the fort started. A surprise awaited the people. They discovered 4 metal pots filled to the brim with mohurs. The workers were overjoyed. They said that this was a gift to Shivaji from the goddess Bhavani, who had blessed his efforts. All the money discovered was brought to Shivaji. No one thought of taking anything from it for himself. After all, it was the wealth of Swaraj. Shivaji felt greatly elated at this unexpected gift which would enable him to pursue his ideal of Swaraj with other vigor. He felt that he was walking under the benevolent eye of the goddess Bhavani. Shivaji utilized part of the treasure found in the fort to purchase arms and ammunition. The rest he decided to use for another project which was already in his mind. About 15 kilometers to the east of Torana is the hill of Murumbudeo. Shivaji had his eye on it for a long time. This hill was steep and difficult of access and therefore a great strategic importance. Adil Shah had actually started constructing a fort on this hill but had left it unfinished. This hill also was not well guarded and Shivaji decided to capture it. आगे बढ़ते हैं. हम बात करेंगे अब देवी भवानी का आशीर्वाद. किला तोड़ना तब शिवाजी के प्रशासन के अधीन था. उन्होंने इसका बहुत सावधानीपूर्वक संरक्षण किया और ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया, एक मराठा किलेदार, एक ब्राह्मण सबनी और एक प्रभु कारखाना के रूप में. इस चौकी में मावल, कोली, रामोशी, महार और कई अन्य जातियों और समुदायों के ऐसे ही बहादुर पुरुष शामिल थे. स्वराज में सभी जातियों और समुदायों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना था और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना था. जैसे ही किले की मरम्मत शुरू हुई, लोगों को एक आश्चर्य की प्रतीक्षा थी. उन्होंने 4 धातु के बर्तन खोजे जो मोहरे से लबालब भरे थे. मजदूर बहुत खुश हुए. उन्होंने कहा कि अब ये शिवाजी को देवी भवानी की ओर से एक उपहार है, जिन्होंने उनके प्रयासों को आशीर्वाद दिया था. खोजी गई सारी धनराशि शिवाजी को दे दी गई. किसी ने इसमें से अपने लिए कुछ लेने के बारे में नहीं सोचा. आखिरकार यह
स्वराज की संपत्ति थी। शिवाजी को इस अप्रत्याशित उपहार से बहुत खुशी हुई, क्योंकि इससे वह स्वराज के अपने आदर्श को और अधिक जोश के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। शिवाजी ने किले में मिले खजाने का कुछ हिस्सा हथियार और गोला बारूद खरीदने में इस्तेमाल किया। बाकी का इस्तेमाल उन्होंने एक और प्रोजेक्ट के लिए करने का फैसला किया, जो उनके दिमाग में पहले से ही था। तोरण से करीब 15 किलोमीटर पूर्व में रुम्ब देव की पहाड़ी है। शिवाजी की नज़र इस पर लंबे समय से थी। यह पहाड़ी खड़ी थी और इस तक पहुंचना मुश्किल था, और इसलिए इसका बहुत सामरिक महत्व था। आदिल शाह ने वास्तव में इस पहाड़ी पर एक किला बनाना शुरू किया था, लेकिन इसे अधूरा छोड़ दिया था। यह पहाड़ी भी अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं थी, और शिवाजी ने इस पर कब्जा करने का फैसला किया। मूविंग अहेड, इन अनदर पैराग्राफ विल टॉक अबाउट द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज। One day Shivaji climbed up the hill with a select band of his followers and took possession of the partially completed fort. The money found on Torana was used to complete the fortifications of Murumbdev. Shivaji named this fort Raigad. Stone masons, carpenters, blacksmiths, water carriers, other workers at the back of this action. The two forts of Kondana and Purandar too had strategic location. Shivaji used his political skill and took control of both the ports. The next fort to come under his sway was Rohida. This was first work indeed, and there was nothing to stop Shivaji now. आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे स्वराज की पहली राजधानी। एक दिन शिवाजी कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ पहाड़ी पर चढ़े। अपने अनुयायियों के एक दल के साथ मिलकर उन्होंने आंशिक रूप से बने किले पर कब्जा कर लिया। तोरण से मिले पैसों का इस्तेमाल मुरुम्बदेव की किलेबंदी को पूरा करने में किया गया। शिवाजी ने इस किले का नाम रायगढ़ रखा। राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, पानी ढोने वाले, अन्य कामगार सभी लोग इसमें जुट गए। राजमहल, बड़ा महल और 18 कार्यशालाएं बनाई। राजगढ़ स्वराज की पहली राजधानी बनी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर जा रहा है, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, तो आप लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम शिवाजी की तीव्र प्रगति। इसके बाद शिवाजी तेजी से आगे बढ़े और मावल में एक के बाद एक किले पर कब्जा किया। पूरे देश, जिसे 12 मावल के नाम से जाना जाता था, 12 मावल खुशी और उत्साह से भर गए थे। कई गांवों से पाटिल और देशमुख आए और शिवाजी के प्रति निष्ठा की शपथ ली। लेकिन मावल में कुछ ऐसे लोग थे जो स्वराज के तेज गति से चलने वाले पहियों में रोड़ा अटकाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। शिवाजी की सफलता से ईर्ष्या करते हुए उन्होंने शिरवल में आदिलशाही कलेक्टर से शिकायत की।
कलेक्टर ने बीजापुर में दूत भेजकर आदिल शाही को शिवाजी की तीव्र प्रगति की सूचना दी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चतुर राजनीतिज्ञ शिवाजी। आदिल शाह को यह समाचार पाकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने शाहजी राजे से स्पष्टीकरण मांगा। शाहजी राजे ने सुल्तान को यह बताकर खुद को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला कि शिवाजी राजे ने संभवतः जागीर के बेहतर प्रशासन के लिए किले पर कब्जा कर लिया है। शिवाजी ने सुल्तान को यह संदेश भी भेजा, मैंने ग्रामीणों इलाकों के बेहतर प्रशासन के लिए किले पर कब्जा किया है। हमने ये केवल सुल्तान के हित में किया है। इस कार्रवाई के पीछे कोई बुरी मंशा नहीं थी। आगे बढ़ते इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा। कोंडाना और पुरंदर के 2 किले भी रणनीतिक स्थानों पर थे। शिवाजी ने अपनी राजनीतिक कुशलता का इस्तेमाल किया और दोनों किलों पर कब्जा कर लिया। उनके अधीन आने वाले अगला किला रोहिड़ा था। यह वाकई बहुत तेज काम था और अब शिवाजी को रोकने वाला कोई नहीं था। आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी ऑसम और आप लोग को बहुत मज़ा आएगा ये इन्फॉर्मेशन और स्टोरी जानने के लिए। और ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार देते जाइए ताकि आगे अच्छे वीडियो हम करने लगे। चलो आज के लिए इतना, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक बाबा टेक केयर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। बाबा टेक केयर।